کہ اسلام میں خدا کا تصور کیا ہے، اور سب سے بہترین جواب اگر کوئی مسلم دے سکتا ہے خدا کا تصور اسلام میں، وہ ہے آپ کو سورہ اخلاص سنائیں۔ سورہ اخلاص قرآن مجید کی سورہ نمبر 112 ہے، آیت نمبر 1 سے 4، جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ اللہ جو بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، وہ نہ کسی کو جنتا ہے نہ کسی سے جنا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف ہے 4 لائنوں میں، 4 لائن کی تعریف ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اگر کوئی بھی انسان کہتا ہے کہ وہ شخص خدا ہے، اور اگر وہ شخص اس 4 لائن کی تعریف میں اترتا ہے، تو ہم مسلمانوں کو کوئی گلا شکوہ نہیں اسے خدا تسلیم کرنے میں۔ 4 لائن، پہلا ہے قل هو اللہ احد، کہو کہ خدا ایک ہے۔ دوسرا اللہ الصمد، اللہ جو بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، وہ نہ کسی کو جنتا ہے نہ کسی سے جنا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اس کا ہمسر کوئی بھی نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں ٹچ ٹون آف تھیولوجی، خدا کا تصور کی سب سے اہم ڈیفینیشن، ٹچ ٹون آف تھیولوجی۔ اگر آپ کوئی بھی خدا میں مانتے ہیں، آپ اس خدا کو اس سورہ اخلاص سے کمپیئر کرو۔ اس سورہ اخلاص کی اگر 4 لائن کی تعریف پہ اترتا ہے تو وہ صحیح خدا ہے، اگر نہیں اترتا ہے تو وہ صحیح نہیں ہے۔ کوئی بھی خدا کو آپ مانتے ہیں، اس کو اس 4 لائن سے پرکھو، اگر اس 4 لائن کی تعریف سے اتر جائے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے تسلیم کرنے میں کہ وہ خدا ہے۔ مثال کے طور پہ کئی انسان یہ مانتے ہیں کہ بھگوان رجنیش وہ خدا ہے۔ سوال جواب کے دوران ایک ہندو دوست نے مجھ سے کہا کہ ہم ہندو نہیں مانتے کہ بھگوان رجنیش خدا ہے۔ تو میں نے اس سے کہا، میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ہندو مانتے ہیں کہ بھگوان رجنیش خدا ہے، میں نے یہ کہا کچھ انسان مانتے ہیں بھگوان رجنیش خدا ہے۔ میں ہندو مذہب کی کتاب پڑھ چکا ہوں، اس میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا ہے کہ بھگوان رجنیش خدا ہے، لیکن کئی انسان یہ مانتے ہیں کہ بھگوان رجنیش خدا ہے۔ آؤ ہم یہ پرکھیں کہ بھگوان رجنیش سورہ اخلاص کے 4 لائن کی تعریف پہ اترتا ہے کہ نہیں۔ سب سے پہلا قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے۔ کیا بھگوان رجنیش ایک ہی ہے؟ کیا وہ ایک ہی انسان ہے جس نے خدا بننے کا دعویٰ کیا؟ سینکڑوں انسان ہیں، خصوصاً ہمارے اس دیش میں، ہندوستان میں ہزاروں انسان کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں، وہ صرف ایک ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی رجنیش بھکت کہے گا نہیں وہ یونیک ہے، وہ علیحدہ ہے، ٹھیک ہے، ہم دوسرے لائن پہ جاتے ہیں، دوسرے پوائنٹ پہ جاتے ہیں۔ اللہ الصمد، اللہ جو بے نیاز ہے۔ کیا رجنیش بے نیاز ہے؟ ہم جب اس کی آتم کتھا یا آٹو بایوگرافی پڑھتے ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ رجنیش کو ڈائبٹیز بیماری تھی، ڈائبٹیز کی بیماری تھی، اسے استھما تھا، اسے ریڑھ کی ہڈی میں درد ہوتا تھا، بیک ایک۔ آپ سوچئے، بھگوان کو ڈائبٹیز ہے، خدا کو استھما ہے، خدا کو ریڑھ کی ہڈی کی درد ہے۔ تیسرا لائن، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کو جنتا ہے نہ کسی سے جنا ہوا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ بھگوان رجنیش مدھیہ پردیش میں پیدا ہوئے، اس کے والد والدہ بھی تھے، دونوں والدین تھے، جو کچھ سال بعد اس کے شاگرد بن گئے۔ یہ بھگوان رجنیش 1981 میں امریکہ جاتے ہیں، USA، اور وہاں اسٹیٹ آف اوریگون، ایک اوریگون جو شہر ہے، وہاں اپنا ایک رجنیش پورم شروع کرتے ہیں، اور امریکہ میں ہزاروں امریکن لوگ کو بیوقوف بناتے ہیں۔ کچھ چند سال بعد امریکن گورنمنٹ اس کو گرفتار کرتی ہے اور جیل میں ڈالتی ہے۔ بھگوان رجنیش کہتے ہیں کہ امریکن گورنمنٹ نے مجھے آستے آستے سے زہر دیا۔ سوچئے، کوئی خدا کو زہر دے سکتا ہے؟ اور 1985 میں 1985 میں امریکن گورنمنٹ اس کو امریکہ کے باہر نکال دیتی ہے،
लात मार के निकाल देती है। फिर से वो हिंदुस्तान में आता है और पूना शहर में अपना जो सेंटर था वहां जाता है। इसे आज की तारीख में कहते हैं ओशो कम्यून। और अगर आप जाएंगे ओशो कम्यून में पूना में, जो रजनीश एक आश्रम है, वहां उसके कब्र पे, उसके समाधि पे एक तख्ती है जिसमें लिखा हुआ है भगवान रजनीश ओशो नेवर बॉर्न नेवर डाइड बट विजिट द अर्थ from the 11th of December 1931 to the 19th of January 1990। इसके तख्ती पे लिखा हुआ है कि ओशो ना कभी पैदा हुए ना कभी मरे, लेकिन धरती पे सैर करने के लिए आए, धरती पे घूमने के लिए आए। 11 दिसंबर 1931 से लेके 19 जनवरी 1990 तक के। Never born, never died, but visit the earth from the 11th of December 1931 to the 19th of January 1990। उस तख्ती पे ये नहीं लिखा था कि भगवान रजनीश को 21 मुमालिक की वीजा नहीं मिली थी। भगवान आ रहा है धरती की सैर करने के लिए और उसे वीजा की जरूरत होती है, उसे 21 मुमालिक की वीजा नहीं दी गई थी। He was not given visas to 21 different countries of the world. Imagine Almighty God coming and he requires visa to visit different parts of the world। और आर्कबिशप ऑफ ग्रीस के पादरी ने कहा कि अगर आप रजनीश को इस देश से निकाल नहीं देंगे तो हम उसके घर और उसके चेलों के घर को जला देंगे। और जो आखिरी लाइन है वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई भी नहीं है, उसका हमसर कोई भी नहीं है। ये तो सिर्फ खुदा के अलावा कोई भी नहीं पास कर सकता। आप अगर उस खुदा के मुकाबले में कुछ भी चीज इस दुनिया में मुकाबला कर सकते हैं तो वो खुदा ही नहीं है। हम जानते हैं कि रजनीश आम इंसान जैसे एक नाक थे, एक मुंह था, 2 आंख थे, 2 हाथ थे, सफेद दाढ़ी थी। अगर आप किसी के साथ खुदा का मुकाबला कर सके तो वो खुदा ही नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स कहता है कि खुदा 1000 गुना आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर से ताकतवर। आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर का नाम सुने होंगे आपने। आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर जिसको लक़ब मिला है मिस्टर यूनिवर्स, सारे जहां में सबसे ताकतवर इंसान, उसको टाइटल मिला था सबसे ताकतवर इंसान आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर। अगर कोई शख्स कहता है कि खुदा 1000 गुना आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर से ज्यादा ताकतवर है, आप अगर खुदा का मुकाबला किसी से भी कर सके, किससे भी करते हैं, चाहे वो आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर हो, चाहे वो दारा सिंह हो, या चाहे किंग कॉन्ग हो, चाहे 1000 गुना हो, लाख गुना हो या करोड़ गुना हो, अगर आप खुदा का मुकाबला किससे भी कर सके इस दुनिया में, उसका हमसर कुछ भी है, किससे भी आप कंपेयर कर सके तो वो खुदा ही नहीं। वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, ये 4 लाइन का डेफिनेशन है सूरह इखलास कुरान मजीद में खुदा की तारीफ में। अगर कोई भी शख्स कहता है कि ये खुदा है, कोई भी इंसान कहता है कि ये खुदा है, अगर उस 4 लाइन की तारीफ में उतरता है तो हमें उसे तस्लीम करना चाहिए कि सही खुदा है। वरना अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इस्रा में सूरह नंबर 17 आयत नंबर 110 में वलिल्लाह अब्दुर रहमान अय्यमा तदू फलहुल अस्माउल हुस्ना, चाहे आप हो उसे रहमान, अल्लाह को चाहे रहमान को या अल्लाह को, कुछ भी तो लेकिन अच्छा नाम और उसके भी एट्रीब्यूट्स है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कई नाम हैं, लेकिन वो नाम सही होना चाहिए और एक मेंटल पिक्चर नहीं होना चाहिए। आपको आपके जहन में अक्स नहीं पैदा करना चाहिए। तकरीबन 99 नाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के, अर्रहमान, अर्रहीम, अल हकीम, मोस्ट ग्रेशियस, मोस्ट मर्सीफुल, मोस्ट वाइज, नो लेस देन 99, और सबसे ऊपर अल्लाह। हम मुसलमान खुदा को अरबी लफ्ज अल्लाह से क्यों पुकारते? उसकी वजह है हम मुसलमान अल्लाह सुब्हानहू व तआला को अल्लाह लफ्ज से क्यों पुकारते बनिस्बत इंग्लिश वर्ड गॉड से? क्योंकि बाकी जितने लफ्ज है वो जबान में उससे खिलवाड़ कर सकता है इंसान। मिसाल के तौर पे जो लोग इंग्लिश में कहते हैं गॉड या खुदा या देव, ये जितने अल्फाज है उससे एक इंसान खेल सकता है। मिसाल के तौर पे गॉड है, अगर आप एस लगाएंगे तो हो जाएगा गॉड्स, प्लूरल ऑफ गॉड।
अल्लाह का कोई प्लूरल नहीं, कोई जमा नहीं। अगर आप एस लगाते गॉड को अंग्रेजी में तो गॉड्स हो जाता है, खुदा की जमा। जो इस्लाम में कुल हो अल्लाह अहद, अल्लाह एक है। अगर आप DESS जोड़ते हैं गॉड को, हो जाता है गॉडेस, मतलब औरत खुदा। इस्लाम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जिन्स नहीं, ना वो मर्द है ना औरत। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अलहदा है, ना मर्द है ना औरत है। अल्लाह इज यूनिक। अगर आप गॉड को ऐड करेंगे फादर, वो हो जाता है गॉड फादर, ही इज माई गॉड फादर, ही इज माई गार्डियन। इस्लाम में अल्लाह फादर, अल्लाह अब्बा नहीं। अगर आप मदर जोड़ते गॉड को, हो जाता है गॉड मदर। इस्लाम में अल्लाह मदर नहीं है। इसीलिए हम मुस्लिम खुसूसन अल्लाह को अल्लाह से पुकारते हैं, दूसरे कोई लफ्ज़ से नहीं। क्योंकि दूसरे अल्फाज जो है उससे एक इंसान खिलवाड़ कर सकता है। मिसाल के तौर पे देव, देव को अगर गए देव, अगर ही लगा देंगे तो देव भी हो गया। देव बने मुज़क्कर तो हो गए ना, देव और देव, यहाँ फीमेल एंड मेल। इस्लाम में गॉड इज नीदर फीमेल नीदर मेल, ना मर्द ना औरत है। देवताओं बहुत से देव हो गए। तो इसीलिए हम मुसलमान अल्लाह को अल्लाह से पुकारते हैं। लेकिन जब मैं तकरीर करता हूँ जो गैर मुस्लिम के सामने, जिसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में सही इल्म नहीं है, तो मैं लफ्ज़ गॉड इस्तेमाल करता हूँ, लफ्ज़ खुदा भी इस्तेमाल करता हूँ, इस तरीके से आज कर रहा हूँ। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि खुदा या गॉड अल्लाह का सही तर्जुमा नहीं। लोग उसे नहीं समझते, इसीलिए मैं खुदा कह रहा हूँ या गॉड कह रहा हूँ। लेकिन सही माने में अल्लाह का तर्जुमा गॉड भी गलत है और खुदा भी गलत है। इसीलिए हम मुसलमान अल्लाह को अरबी में अल्लाह कहते हैं। वरना कुरान क्या कहते हैं, रहमान आप चाहे अल्लाह को रहमान कहो या अल्लाह कहो, उसको कुछ भी कहो, लेकिन एक अच्छा नाम लो। तो इससे हमें पता चलता है कि अगर हर इंसान ये माने कि सारी इंसानियत का खुदा एक है, रब एक है, खालिक एक है, तो ही हम एक भाईचारा, आलमी भाईचारा के ऊपर अमल कर सकते हैं। और ये आलमी भाईचारा की बुनियाद है फेथ, इसे कहते हैं ईमान का भाईचारा। अगर हर इंसान को ईमान है कि हमारा रब एक है, हमारा खालिक एक है, हमारा खुदा एक है, तो ही हम एक आलमी भाईचारा के ऊपर अमल कर सकते हैं। और ये भाईचारा बाकी सारे भाईचारों से ऊंचा है, चाहे वो खून का भाईचारा हो या कोई भी भाईचारा। और ये ईमान का भाईचारा कि रब एक है, खालिक एक है, खुदा एक है और उसी की इबादत करना चाहिए। ये भाईचारा सिर्फ हॉरिजॉन्टली सारे दुनिया में नहीं फैलता, सिर्फ दुनिया के लोग जो जी रहे हैं उसके अंदर नहीं, लेकिन वर्टिकली भी, ऊपर और नीचे भी, जो कौम जो इंसान पहले भी आ चुके हैं दुनिया में और जो हमारे बाद आएंगे उनको भी समेटता है। ये आलमी भाईचारा जो ईमान की बुनियाद पे है कि खालिक एक है, रब एक है, उसी की इबादत करना चाहिए, जिसे कहते हैं तौहीद इस्लाम में, वो भाईचारा ना ही सारे इंसान जो आज मौजूद है उनको समेटता है, लेकिन जो इंसान पहले जो गुजरे और जो आएंगे उनको भी समेटता है। और ये भाईचारा बाकी सारे भाईचारों से ऊंचा है, चाहे वो खून के रिश्ते का भाईचारा हो। और इसमें कई मिसाल है कुरान मजीद में। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इसरा में, सूरह नंबर 17 आयत नंबर 23 और 24 में कि अल्लाह की इबादत के बाद आपको अपने वालिदैन से अच्छा सलूक करना चाहिए, उनकी इज्जत करना चाहिए। और कोई भी एक या दोनों अगर ज़ईफ हो जाए, उनकी उम्र ज़्यादा हो जाए, ज़ईफ हो जाए, तो उनको उफ तक मत कहो। आपके वालिद या वालदा, माँ या बाप, कोई भी ज़ईफ हो जाए उफ तक मत कहो, लेकिन उनसे अच्छा बर्ताव करो, अच्छा सलूक करो और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करो कि उन पे करम करो जिस तरीके से उन्होंने हमारी परवरिश की। वालिदैन की बहुत इज्जत है कुरान में, लेकिन उसके बावजूद ये लिखा हुआ है कि अगर वालिदैन अल्लाह के खिलाफ है तो उस वक्त
लिखा है सूरह लुकमान में सूरह नंबर 31 आयत नंबर 15 में कि आप वालिदैन की इज्जत करो, लेकिन अगर वालिदैन जिद्दोजहद करे, जबरदस्ती करे आपको उसकी इबादत करने से जो अल्लाह के अलावा कोई और है, जिसका इल्म आपको नहीं है, तो आप उनकी बात मत मानो, लेकिन फिर भी उनसे अच्छा सलूक करो, वालिदैन की इज्जत करो। लेकिन अगर वो अल्लाह के खिलाफ जाए तो उस वक्त उनकी बात मत मानो, लेकिन फिर भी उनकी इज्जत करो, उनसे अच्छा सलूक करो। और कई मिसाल है कुरान मजीद में, जो नबियों की मिसाल है, कई रसूल की मिसाल है। मिसाल के तौर पे कुरान में जिक्र है सूरह हूद में सूरह नंबर 11 आयत नंबर 45 to 47 उसमें नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र है। और हम जानते हैं प्रॉफिट नोआ पीस बी अपॉन हिम, नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र अक्सर लोग जानते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको वही नाज़िल की थी कि एक बारिश होगी, फ्लड आएगा, इसीलिए एक कश्ती बनाओ, एक आग बनाओ, और नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाई। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते कि आप मेरे फैमिली मेंबर्स को, मेरे जो घर के लोग हैं उनको आप बचाएंगे। और अल्लाह ताला वादा करते कि मैं आपके फैमिली मेंबर्स को, आपके घर के लोग को बचाऊंगा। और फिर नूह अलैहिस्सलाम बड़ी कश्ती बनाते। कुछ लोग उनके ऊपर यकीन करते, अक्सर लोग यकीन नहीं करते। और उनमें से एक होता है उनका बेटा, जो कहता है कि बारिश कैसे हो सकती इधर। वो कहता है बारिश आएंगी तो मैं एक पहाड़ की ऊंची चोटी पे जाके चढ़ जाऊंगा। वो नूह अलैहिस्सलाम की बात नहीं, अपने वालिद की बात नहीं। कुछ वक्त बाद बारिश आती, फ्लड हो जाता है, कश्ती ऊंची होती जाती और पानी ऊंचा होते जाता है। और नूह अलैहिस्सलाम के बेटे पहाड़ की चोटी पे जाके बैठ जाते हैं, बोलते मैं यहाँ महफूज रहूँगा। पानी बढ़ता जाता है, फिर उन्हें पता लगता है कि गलत है और पानी उस चोटी के ऊंचाई तक पहुंचता है। वहाँ जब नूह अलैहिस्सलाम के बेटे पुकारते मदद के लिए अपने वालिद से कि मुझे बचाओ, तो नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह से फरमाइश करते कि आपने तो वादा किया था मुझे कि आप मेरे फैमिली के लोग को बचाएंगे, आप मेरे फैमिली मेंबर्स को बचाएंगे। तो अल्लाह ताला आयत नाज़िल करते हैं कि आपका बेटा आपके फैमिली में से नहीं है, आपका बेटा आपका फैमिली मेंबर नहीं है। मतलब ये ईमान का भाईचारा खून के भाईचारे से कहीं ऊंचा है। और नूह अलैहिस्सलाम का बेटा डूब जाता है। इसी तरीके से जिक्र है कुरान मजीद में सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 114 में कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने वालिद जो बुत परस्त करते थे उनके खिलाफ जाते हैं, तो उनके वालिद उनको घर से निकाल देते। फिर भी वो उनकी इज्जत करते, लेकिन कहते वो गलत थे, वो घर से जिक्र है कुरान मजीद में सूरह तहरीम में सूरह नंबर 66 आयत नंबर 10 में कि लूत अलैहिस्सलाम की बीवी उनका कहना नहीं मानती, नबी थे, उनकी बीवी ने कहना मानी, उनकी बीवी तबाह हो गई। हमें कुरान मजीद के अंदर एक एग्जाम्पल मिलता है सूरह तहरीम में सूरह नंबर 66 आयत नंबर 11 में कि फिरौन की बीवी, फिरौन एक जालिम इंसान, उसकी बीवी अच्छी हज़रत आसिया। सूरह तहरीम सूरह नंबर 66 आयत नंबर 11 में हज़रत आसिया दुआ करते अल्लाह ताला से कि आप मुझे जन्नत में घर दो। फिरौन जो सबसे जालिम इंसान उस टाइम का, उसकी बीवी अल्हम्दुलिल्लाह मोमिना। तो आप देखेंगे कि कुरान मजीद में कई एग्जाम्पल दिए गए हैं। और ये भाईचारा जो ईमान का भाईचारा है कि खुदा अल्लाह एक है, रब एक है, खालिक एक है, सारी इंसानियत का सिर्फ उसी की इबादत करना चाहिए, वो भाईचारा बाकी सब भाईचारे से ऊंचा है। और सिर्फ ये एक नुक्ता है जिसके वजह से सारी दुनिया के इंसान एक हो सकते हैं और एक भाईचारे के अंदर आ सकते हैं। मैं इस तकरीर को ख़त्म करता हूँ कुरान की आयत से, सूरह निसा की सूरह नंबर 4 आयत नंबर 1, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते या अय्युहन नास इत्तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा खलक़ मिनहा ज़ौजहा, कि या इंसानों मैंने तुमको बनाया एक इंसान से, एक मर्द से, और उससे पैदा किया उसकी बीवी। और आप इस रब
عزت کرو اور اس رب کی عبادت کرو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.